In this video, we will study about double fertilization and its significance. First, we'll discuss what is double fertilization, होता कैसे है, what is its process, how does it occur. अगर डबल फर्टिलाइजेशन हो गया है तो उसका फ़ायदा क्या है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है. सो विल डिस्कस थ्री थिंग्स. व्हाट इज़ डबल फर्टिलाइजेशन, हाउ डज इट अकर, एंड व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन. Now, double mean twice fertilization. ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक होता है और एम्ब्रियो सैक में यहाँ पर एक एग और ये दो सिनर्जिड्स होती हैं. These are three antipodal cells and these are two polar nuclei. So now male gamete will come and fuse with egg as well as with the secondary nucleus. Now this double fusion, that is fusion of one of the male gamete with egg and second with the secondary nucleus, is called as double fertilization. Now when this is egg and this is the male gamete and they are fusing with each other, this is called as syngamy, mean fusion of gametes. One is male gamete and second is the female gamete. Now this occurs in the embryo sac, as we have discussed. This embryo sac is present in the ovule. So double fertilization जब होता है, that will occur only in the angiospermic flower, and that too bisexual flower. Bisexual flower which has two sexes, male and female. If we see the structure of flower, these are sepals and these are petals, and in the center this part is the female part, and this is having ovary, style and stigma, and inside the ovary are present ovules. These are white colored ovules present inside the ovary, and this part is the male part, also called as androecium. This is filament and this is the anther part, and this anther will days open to liberate the pollen grains. So pollen grain which are liberated from the anther, this process is also called as pollination. If these pollen grains they fall on the stigma of the same flower, this is called as self pollination. लेकिन अगर यही pollen grain दूसरे flower के स्टिग्मा के ऊपर जाके गिरेंगे, यहाँ पर गिरेंगे आके, सो दिस इज़ कॉल्ड एज क्रॉस पॉलिनेशन. अगर वो दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर गिरते हैं क्रॉस, अगर वो सेम पे गिरते हैं, दिस इज़ कॉल्ड एज सेल्फ मीन ऑटो सेल्फ पॉलिनेशन. सो ये हो गया मेल सेक्स ऑर्गन विच इज़ रिलीजिंग द pollen grain as we discussed, and this is the female sex organ called as gynoecium. Now inside the female sex organ, ovule is present, and in the ovule is present the embryo sac. So what happens during double fertilization? We can see here these pollen grains has fallen on the stigma, whether it is self pollination or it is the cross pollination. पॉलिनेशन के बाद पॉलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर गिरते हैं. अब ये जो स्टिग्मेटिक सरफेस है यहाँ पर, ये अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ पॉलन ग्रेन्स को, और दोनों में जैसे ये पॉलन ग्रेन आ गया और ये है स्टिग्मा का सरफेस, दोनों में एक कंपैटिबिलिटी रिएक्शन होगा, रिकॉग्निशन होगा, पहचानेंगे एक दूसरे को, और फिर पॉलन ग्रेन जो है उसकी जर्मिनेशन स्टार्ट होती है. जब उसकी जर्मिनेशन स्टार्ट होती है तो उससे बनती है ये पॉलन ट्यूब. पॉलन ट्यूब जो है, ये जो स्टाइलर टिश्यू है, इसमें से ट्रैवल करके दिस विल रीच टू द ओव्यूलर पार्ट. सो दिस इज़ द ओव्यूल पार्ट. ओव्यूल कई तरह के हैं, वो हमने एक अलग से वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर है एनाट्रोपस ओव्यूल. एनाट्रोपस ओव्यूलिस, दिस इज़ द न्यूसेलस, दीज आर द इंटेगमेंट्स जो इसको कवर कर रही हैं, ठीक है. और ये ऐसे करके आ रहा है, इन्वर्टेड है ये ओव्यूल, और ये पार्ट जहाँ पर इंटेगमेंट्स नहीं है इसको माइक्रोपाइल बोलते हैं, एंड दिस पार्ट इज़ कॉल्ड एज द चलासा पार्ट. ये इंटेगमेंट्स हैं, चलासा एंड माइक्रोपाइल. अब पॉलन ग्रेन्स यहाँ पर गिरे, उनकी क्योंकि दोनों में एक कंपैटिबिलिटी रिएक्शन होगा, एक दूसरे को पहचानेंगे. जो पॉलन ग्रेन की वॉल है और स्टिग्मा के सरफेस के ऊपर वो एक्सुडेट्स निकलते हैं, फिर वो एब्जॉर्ब करता है मॉइस्चर, तो अल्टीमेटली ये पॉलन ट्यूब बनती है. So this falling of pollen grains on the stigma, this is called as pollination. और pollen grain जो absorb करते हैं पानी और sugary substances, उनसे उनकी hydration हो जाती है और उनमें एक फ्रेंडशिप वाला रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है जिसको हम बोलते हैं कंपैटिबिलिटी रिएक्शन. तो
जो इसकी वॉल की प्रोटीन्स हैं और जो स्टिग्मा का सरफेस है, जब वो रिकग्निशन हो गया, पॉलन ट्यूब बन गया, अब ये जो पूरा केमिकली कंट्रोल्ड है फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ट्यूब और वो जो ट्रेवल कर रहा है थ्रू द स्टाइलर टिश्यू, दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज कीमोटैक्सी। सो पॉलन ग्रेन जर्मिनेट करके पॉलन ट्यूब बनाते हैं। और पॉलन ट्यूब जो है दिस इज़ कैरिंग द मेल गैमीट। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने अंदर इसके 2 मेल गैमीट बनाए हुए हैं। तो ये जो कैरिंग है, मतलब कोई चीज़ इसको कैरी कर रही है मेल गैमीट को टूवर्ड द एम्ब्रियो सैक, तो कैरिंग मतलब पॉलन ट्यूब के अंदर जो मेल गैमीट पड़े हैं उनको वो कैरी करके लेके जा रही है टूवर्ड द फीमेल गैमीट। सो दिस इज़ कॉल्ड एज साइफोनोगैमी। अब जो पॉलन ट्यूब है स्टाइल के अंदर, मतलब पूरा ये जो ट्रैवलिंग है, यहाँ से पॉलन ट्यूब ऐसे ट्रैवल करके जा रही है, पूरा जो इसका ट्रैवल है, फॉर्मेशन है, दिस इज़ ऑल्सो केमिकली कंट्रोल्ड। तो वो केमिकल की हेल्प से एक मूवमेंट हो रही है, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज कीमोटैक्सिस मूवमेंट। तो उसके लिए एक कॉम्प्लेक्स है जो इसको मूवमेंट में हेल्प कर रहा है, कंसनट्रेशन है, दैट इज़ कैल्शियम बोरन इनोसिटल शुगर कॉम्प्लेक्स। कैल्शियम बोरन इनोसिटल शुगर कॉम्प्लेक्स जो है इस पॉलन ट्यूब को आगे कैरी करने में हेल्प कर रहा है। दिस इज़ कॉल्ड एज कीमोट्रॉपिज्म। जो स्टाइल का जो सॉलिड टिश्यू है उसको वो ट्रेवर्स करके आगे जो है ओव्यूल की तरफ पहुंच रही है, एम्ब्रियो सैक की तरफ पहुंच रही है। तो ये जैसे हमने डिस्कस किया था अभी कि एम्ब्रियो सैक के अंदर एक एग है, 2 सिनर्जिड हैं जो इसको असिस्ट कर रहे हैं, ये 3 एंटीपोडल सेल है जो बाद में डिजनरेट हो जाते हैं, और ये सेंटर में 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं। तो इसके लिए हमने ओव्यूल का स्ट्रक्चर बहुत डिटेल में बताया हुआ है कि उसका अंदर का स्ट्रक्चर क्या है। तो उसकी जो वीडियो है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी। अब ये मेल गैमीट आ गए जो पॉलन ट्यूब कैरी कर रही थी। एक जो मेल गैमीट है वो फ्यूज़ कर रहा है विद द पोलर न्यूक्लियस, ये वाले पार्ट के साथ। ये ऑलरेडी 2 न्यूक्लियाई हैं, अब तीसरा इसके साथ आके फ्यूज़ कर जाएगा, 1, 2 एंड 3। तो ये बन जाएगा ट्रिप्लॉइड सेल, ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस फर्टिलाइजेशन के बाद। कईयों में ये पेंटाप्लॉइड भी हो जाता है, एक्सोप्लॉइड भी हो जाता है, तो उस वेरिएशन में हम नहीं जाएंगे क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं कि डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, प्लाइडी लेवल नहीं कर रहे हैं। तो ये अल्टीमेटली यहाँ पे ट्रिप्लॉइड हो जाएगा। और एक जो है एग है और उसके साथ एक मेल गैमीट फ्यूज़ कर रहा है, तो ये अल्टीमेटली फ्यूजन के बाद बन जाएगा डिप्लॉइड 2n। तो ये 2n ही रहेगा, इसका प्लाइडी लेवल 2n ही रहेगा। तो इसको हम जाइगोट बोलते हैं, जो डिप्लॉयड भी बोलते हैं, जिससे आगे एम्ब्रियो भी बनेगा। अब होता क्या है, यूजुअली एक ही मेल गैमीट है जो इसके साथ फ्यूज़ करता है, लेकिन यहाँ पे 2 जगह पे मेल गैमीट फ्यूज़ कर रहा है, एक सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ, दूसरा एग के साथ। तो 2 जगह पे फर्टिलाइजेशन हो रहा है, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। इन वन ऑफ द मेल गैमीट फ्यूजेस विद द एग एंड सेकेंड मेल गैमीट फ्यूजेस विद द सेकेंडरी न्यूक्लियस। अब ये जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है जिसको हमने बोला कि प्लाइडी लेवल इट कैन गो टू ट्रिप्लॉइड और इट कैन बी पेंटाप्लॉइड ऑल्सो। अब ये जो न्यूक्लियस है, ये जो बना है, इससे बनता है एंडोस्पर्म, और इससे बनेगा जाइगोट से क्या बनेगा, एम्ब्रियो। ये एम्ब्रियो बनाने में हेल्प करता है, जो बाद में सीड में भी प्रेजेंट होता है, जो उसकी जर्मिनेशन में हेल्प करता है। तो अगर हम देखें कि ये जो पॉलन ट्यूब है कहाँ से एंटर कर रही है ओव्यूल के अंदर, अगर तो वो माइक्रोपाइल के थ्रू एंटर कर रही है, यहाँ पे एंटर करके अंदर जा रही है, एंड उसकी आगे जाके ये जो पॉलन ट्यूब अंदर जाती है ना, तो यहाँ पे जाके ये टूट जाती है और ये 2 मोल गैमीट रिलीज़ हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर ये यहाँ से मोरी से जा रही है, पोर से जा रही है, तो हम बोलते हैं पोरोगैमी। सो एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू द ओव्यूल थ्रू माइक्रोपाइल, दिस इज कॉल्ड एज पोरोगैमी। लेकिन अगर पॉलन ट्यूब पीछे से यहाँ से बैक डोर एंट्री कर रही है और चलाज़ल एंड के थ्रू निकल के यहाँ पे पहुँच रही है, तो इसको हम बोलते हैं चलाज़ोगैमी। सो वी कैन से एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू ओव्यूल थ्रू चलाज़ल एंड इज कॉल्ड एज चलाज़ोगैमी। लेकिन अगर वो ना तो यहाँ से जा रही है ना यहाँ से जा रही है, लेकिन वो इंटेगुमेंट आ रही है, यहाँ से आके यहाँ पर पहुँच रही है, सो दिस इज कॉल्ड एज मीजोगैमी। So we can say entry of pollen tube into ovule through integuments is called as mesogamy। तो ये तो हो गया कि pollen tube कैसे एंटर कर रही है और कैसे उसकी फर्टिलाइजेशन हो रही है। अब जैसे हमने डिस्कस किया था यहाँ पर अभी कि ये जो जाइगोट है ये डिप्लॉयड बन गया, बाद में इससे क्या बनेगा, एम्ब्रियो। अब ये जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, दिस विल फॉर्म एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म बेसिकली क्या है, ये नरिशमेंट टिश्यू है, जो जैसे एम्ब्रियो बनेगा तो उसको खाना पीना चाहिए या उसको न्यूट्रिएंट्स चाहिए, तो वो कौन प्रोवाइड करेगा, एंडोस्पर्म प्रोवाइड करता है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि डबल फर्टिलाइजेशन हो रहा है। तो अगर वो एम्ब्रियो बनेगा तभी एंडोस्पर्म बनेगा,
अगर एम्ब्रियो नहीं बनेगा तो एंडोस्पर्म भी नहीं बनेगा। जैसे हमने लास्ट जो जिम्नोस्पर्म्स में देखा था कि एंडोस्पर्म पहले बन जाता है, लेकिन यहाँ पे एनर्जी वेस्ट नहीं होती है प्लांट की। सो अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, फ़ायदा क्या है डबल फर्टिलाइजेशन का इन एंजियोस्पर्म्स। जैसे हमने देखा है कि एम्ब्रियो सैक में यहाँ पर हमने देखा है कि एग है, ये सिनर्जिड्स हैं, यहाँ पे 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं और यहाँ पर 3 एंटीपोडल सेल हैं। 3 + 2 + 3 7 या 8 सेल होते हैं, तो यहाँ पे इनकी ग्रोथ रुक जाती है। लेकिन जब वो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, जाइगोट से आगे एम्ब्रियो बनेगा, तो फिर से उसकी जो ग्रोथ है वो रिज्यूम हो जाएगी। जो 7 या 8 सेल पे अटक गई थी ग्रोथ, वो बाद में पूरी ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाएगी। अब हमने कहा कि एक मेल गैमीट फ्यूज़ करता है एग के साथ, सेकंड जो है वो फ्यूज़ करता है सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ। तो अगर जाइगोट बनेगा तभी एम्ब्रियो बनेगा, अगर एम्ब्रियो बनेगा तभी वो जो ओव्यूल है दैट विल राइपन टू फॉर्म सीड। तो अगर हम चाहते हैं कि वायबल सीड बने, अगर एम्ब्रियो होगा तभी वो जर्मिनेट करके आगे पौधा बनाएगा। तो वायबल मीन जो सर्वाइव कर सके या वो जर्मिनेट कर सके, उसको वायबल सीड बोलते हैं। तो उसके लिए ये फर्टिलाइजेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे हमने डिस्कस किया था कि सेकंड जो मेल गैमीट है वो फ्यूज़ करता है सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ, तो वो तभी होगा जब एम्ब्रियो बना है या जाइगोट बना है। अगर पहला फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो दूसरा भी नहीं होगा। तो ये एंडोस्पर्म बनाने में हेल्प करता है, जो एम्ब्रियो को खाना पीना देगा, और दिस विल एक्ट एज अ न्यूट्रिटिव टिश्यू एंड प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। क्योंकि जो एम्ब्रियो के जाइगोट एक सेल है अभी डिप्लॉयड, फिर जाइगोट जो है वो डिवाइड करेगा 2 में, 4 में, 8 में, 16, 32, तो बहुत सारे सेल्स बन के फिर उनकी डिफ्रेंसिएशन होती है एम्ब्रियो में। तो पूरा जो प्रोसेस है उसको एंडोस्पर्म नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, और एंडोस्पर्म तभी बनेगा जब एम्ब्रियो बना है। सो हम ये कह सकते हैं कि ये चीज़ जो है एडवांस है एज़ कम्पेयर टू जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म में पहले ही एंडोस्पर्म बन जाता है। और दूसरा, जैसे हमने देखा है कि अब एग के साथ जब फर्टिलाइजेशन होता है तो जाइगोट बनता है, तो ये जिम्नोस्पर्म में भी है, एंजियोस्पर्म में भी है। लेकिन जब सेकेंड मेल गैमीट है जो एंडोस्पर्म न्यूक्लियस के साथ फ्यूज़ हो रहा है, तो उसको भी कुछ मेल कैरेक्टरिस्टिक्स दे रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो उसका स्पोरोफिटिक टिश्यू है, जैसे एंडोस्पर्म पार्ट है, उसमें भी कुछ मेल कैरेक्टरिस्टिक्स जा रहे हैं थ्रू द फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट विद द एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो अगर डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो सीड फॉर्मेशन नहीं होगा, अगर एम्ब्रियो नहीं बनेगा तो एंडोस्पर्म भी नहीं बनेगा। सो डबल फर्टिलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है एक प्रॉपर सीड बनने के लिए या वायबल सीड बनने के लिए। सो दिस इज़ व्हाट इज़ डबल फर्टिलाइजेशन एंड इट्स सिग्निफिकेंस। अगर आपके फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, इफ़ यू हैव लाइक्ड माई वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।